Good morning, my dear children. How are you all? Good. Hope you all are good. So, students, I know you have many friends, right? And do you know that who are the real ones? Do you know about it? Who are the real ones? Real ones होते कौन से हैं? What is the meaning of real friend? Real friends are those friends which stand with you in every situation, in all ups and downs. So आपके फ्रेंड्स कौन से हैं? रियल फ्रेंड्स हैं जो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, तो वो होते हैं हमारे रियल फ्रेंड्स जो हमेशा हमारा साथ देते हैं. एंड आपको कभी लगा कि कोई फ्रेंड्स हैं जो प्रेज करते हैं हमारी, जैसे कि बाहर से तो वो प्रेज कर रहे हैं मीठे 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 मीठे, है ना, और अंदर से कुछ और, जो एक प्रेज करते हैं विद सेल्फिश मोटिव, जिन्हें हमसे कुछ चाहिए होता है, वो इसलिए हमारे प्रेज कर रहे हैं. होता है कभी ऐसा? जो ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो सिर्फ प्रेज करते हैं और अंदर से कुछ और, सिर्फ मीठी बातें करते हैं विद फॉर देयर सेल्फिश मोटिव, और उनके वर्ड्स खाली से होते हैं, कुछ नहीं होता, उनको बोलते हैं फ्लैटरर्स. सो आर पोएम which is related to friends. Our poem name is Friends and Flatterers and it is written by William Shakespeare. Friends and Flatterers, this poem tells about the real ones and the flatterers. In this poem, Shakespeare is trying to teach us that real friends कौन से हैं और flatterers कौन से हैं. Shakespeare warns us that we must be careful while choosing our friends. While choosing our friends, हमेशा वही friend choose करो, those are with you, those stand with you in every situation of life. They will never leave you. So poem is about friends and Shakespeare is trying to teach us. So this poem is written by William Shakespeare. William Shakespeare, आप सभी ने सुना हुआ है इनका नेम, विलियम शेक्सपियर. He is the greatest writer, poet, actor. He has written many novels, stories, sonnets, plays. Sonnet होता है poem with 14 lines, जिनकी rhyming scheme होती है. 14 lines की poem को sonnet बोलते हैं. And do you know, he has written 154 sonnets. He is regarded the greatest English writer. He has contributed a lot and he is considered as the England national poet, William Shakespeare. He has written many plays. He is playwright. Playwright means who writes many plays and novels like King Lear, Othello, Macbeth, Tempest, बहुत सारे हैं, as you like it. So this is about William Shakespeare, and William Shakespeare has written many beautiful, very beautiful poem, Friends and Flatterers, to teach us. So in this poem, it tells us the qualities of a real friend. Sometimes we are being carried away by flatterers and fail to recognize that who are the real ones and who are the flatterers. So in the first stanza, Shakespeare is saying, poet is saying, everyone that flatters thee. Shakespeare is saying कि जो friends आपकी flattering यानी कि आपकी praise करते हैं झूठी for the selfish motive, वो आपके दुख में कभी भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे. मिजरी होता है दुख, वो आपके दुख में, आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे. एंड वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड. यहाँ पे शेक्सपियर ने एक पोएटिक डिवाइस यूज़ की है. कौन सी पोएटिक डिवाइस? सिमिली. सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है व्हेन वी आर मेकिंग कंपैरिजन, जब हम एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक. जैसे यहाँ पे शेक्सपियर ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड. उन जो फ्लैटर्स हैं उनके जो वर्ड्स हैं उनको किसके साथ कंपेयर किए? विंड के साथ. क्यों किया कंपेयर? वाई? विंड जो है वो एमलेस होती है, लाइक एक डायरेक्शन से वो शुरू होती है
फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, फिर अपनी एक वो डायरेक्शन से फिर दूसरी डायरेक्शन। एंड शेक्सपियर इज सेइंग जो फ्लैटरर्स होते हैं, जो फेक फ्रेंड्स होते हैं, उनके वर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं। वर्ड्स आर इजी बट इन रियलिटी दे विल नॉट स्टैंड विद यू। सिर्फ वो एक मीठी मीठी बातें ही करते हैं और रियलिटी में अंदर से उनको कुछ नहीं है। एंड शेक्सपियर इज सेइंग जो ट्रू फ्रेंड्स हैं दे विल नेवर लीव यू, दे विल विद यू। एंड ऐसे जो फ्रेंड्स हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। ऐसे फ्रेंड्स ढूंढने बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा पोएट इज सेइंग एवरीवन विल बी दाई फ्रेंड इफ़ यू हैव मनी, पावर, वेल्थ। अगर आपके पास ये है तो आप क्या देखोगे? यू विल बी सराउंडेड बाय मैनी फ्रेंड्स। अगर आपके पास फेम है, मनी है, पावर है, तो आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, सभी आपके फ्रेंड बनेंगे। बट अगर आपके पास नहीं है तो सारे दूर दूर हो जाएंगे। इन द नेक्स्ट स्टैंजा इफ दैट वन बी प्रोडिगल, हियर पोएट हैज़ यूज्ड वन वर्ड प्रोडिगल। प्रोडिगल होता है स्पेंडथ्रिफ्ट, जो बहुत फालतू के खर्चे करते हैं एंड विदाउट थिंकिंग कि वो पुअर हो जाएंगे, जो औरों पे खर्चे करते हैं फालतू के। एंड उनको वो क्या कह रहे हैं शेक्सपियर, दे विल कॉल हिम प्रोडिगल, कि ऐसे फ्लैटरर्स फ्रेंड प्रोडिगल को ही लाइक करते हैं जो कि उनके ऊपर खर्चा करें विदाउट थिंकिंग। एंड वो क्या प्रेज करते हैं उनकी जो फ्लैटर्स होते हैं कि वी आर वेरी सॉरी, आप तो एक किंग होने चाहिए थे, बिकॉज यू हैव ऑल क्वालिटीज़ ऑफ किंग, आप में किंग की सारी क्वालिटीज़ हैं। वो उनकी झूठी तारीफ़ें करते हैं कि जो वो उनके ऊपर खर्चा करते रहे। बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्रॉन मीन्स बैड लक। जब आपके ऊपर शेक्सपियर इज ट्राइंग टू टीच अस हियर दैट ही इज़ डिस्क्राइबिंग, अगर हमारा कोई बैड लक होता है, हमारा कोई बुरा टाइम आता है, तो ये वाले फ्रेंड हमें बाय बाय कर जाते हैं, फेयरवेल। एंड दे विल नो गिव यू कंपनी मोर, वो आपको फिर कंपनी नहीं देंगे। अगर आपके ऊपर कोई बुरा टाइम आता है, आपकी मनी खत्म हो जाती है, फिर वो आपसे दूर चले जाएंगे कि हमें भी इस सिचुएशन को इनके साथ फेस ना करना पड़ जाए, दे विल लीव यू। सो इस पोएम में जो शेक्सपियर है वो हमें रियल फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ भी बता रहे हैं और फ्लैटरर्स की क्वालिटीज़ भी बता रहे हैं कि वो कैसे अपनी मीठी मीठी बातों से सभी की प्रेज करते हैं, फिर उनका जो अपने ऊपर खर्चा करवाते हैं। ही दैट इज़ दाई फ्रेंड इंडीड। अब नेक्स्ट स्टैंजा में शेक्सपियर ने क्वालिटीज़ बताई हैं ट्रू फ्रेंड्स की। ही इज सेइंग कि जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा, ही विल बी विद यू इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। वो आपकी, जब आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, वो आपकी हेल्प करेगा। आपका दुख उसका दुख होगा, जैसे आप सोरो फील कर रहे हो वो भी उसको फील करेगा। अगर आप नहीं सोओगे तो वो भी नहीं सोएगा। सो ही इज सेइंग अगर आप रो रहे हो तो वो भी आपके लिए रोएगा, अगर आप जाग रहे हो वो आपके लिए जागेगा। वो ट्रू फ्रेंड होगा, वो एक रियल फ्रेंड होगा जो आपकी सिचुएशन को, आपकी प्रॉब्लम को अपना समझ के आपकी हेल्प करेगा। ही इज़ द रियल वन। एंड इन द लास्ट स्टैंजा शेक्सपियर इज सेइंग दैट दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट ही विद दी डॉथ बियर अपार्ट, कि ये कुछ साइंस हैं जो फेथफुल फ्रेंड के हैं एंड हमारी लाइफ में हमें फेथफुल फ्रेंड मिलने बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो दिस पोएम इज़ टीचिंग अस, हम इस पोएम से क्या सीखने को मिलता है? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू लर्न? वी लर्न वी मस्ट बी केयरफुल वाइल चूजिंग आवर फ्रेंड्स। हमें पता होना चाहिए कि जो पोएम हमें यही सिखा रही है कि रियल वन फ्रेंड कौन से हैं और फ्लैटरर्स कौन से हैं। सो हियर राइमिंग स्कीम आई विल टेल यू। राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं? जैसे एक स्टैंजे की लास्ट लाइन है, लास्ट वर्ड है फ्रेंड, इसकी साउंड क्या है? फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं इसको कौन सा अल्फाबेट दे रही हूँ? ए। नेक्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है स्पेंड, फ्रेंड स्पेंड, दोनों की साउंड सेम हो रही है ना, तो उसको सेम अल्फाबेट ए। फ्रेंड स्पेंड स्काउंट, स्काउंट की सेम है? नो, तो उसके लिए मैं इसको क्या अल्फाबेट दूंगी? बी। स्काउंट की किसके साथ मैच कर रही है? वॉन्ट के साथ, तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए ए बी बी।
Hope you understood this poem and you enjoyed this. Thank you.